तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Unacademy. Let's crack it. Success is nothing more than incorporating a few simple disciplines with unwavering consistency, which will lead you to a glorious path of incredible results. Before starting, may I request Principal Sir to felicitate our guest of honor, IAS Sonal Goyal ma'am. Thank you, sir. As we all know, having a holistic approach is the most important thing to build a career and climb the success ladder in any type of examination. So if anyone wants to achieve unfathomable success, he or she must be an all-rounder, which can prepare them to handle all challenges in the exams or in the service. And I believe our speaker is the epitome of this. IAS Sonal Goyal ma'am, who has been an absolute icon for all the aspiring aspirants, as she has secured All India Rank 13 in most prestigious UPSC CASC 2008 and has been diligently imprinting her talent and dedication in all fields. She was named one of the top 25 women transforming India by Niti Aayog, the United Nations, in September 2016, as well as an honorary advisor at the BRICS CCI Young Leaders Forum session 2020 to 23. And even if I just try to delve into her magnificent, entrancing personality, then I have to praise the entire ocean on this. And still, I will be eager to know more and more about her. So I would like to welcome you, ma'am. Without wasting much time, ma'am, please come and guide us through this fascinating topic. A very good morning to all of you. सभी को मेरा नमस्कार. सब लोग कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, पॉजिटिव मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग. It's a good weather, thankfully, in Delhi. So to set the tone of the session, with all due respect to the dignitaries on the dais, my dear students, life of an IAS officer. So this is the topic for which you all have come. एक IAS ऑफिसर हो, एक IPS ऑफिसर हो, या कोई भी फील्ड में प्रोफेशनल हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, उन सब की जिंदगी चैलेंजेस से हमेशा भरी रहती है. एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज एज वेल एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. सो आई वुड बिगिन बाय मेंशनिंग अ स्मॉल पोइट्री. पिंक मूवी आई एम श्योर सबने देखी होगी. अमिताभ बच्चन जी ने ये पोइट्री रिसाइट की है, जो ऑफ एंड ऑन मेरे जहन में हमेशा आती है. तो वो कुछ पंक्तियां मैं आज के सेशन को जस्ट एक शुरुआती तौर में वहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगी, जो कि आप सबके लिए, हम सबके लिए डेडिकेटेड है. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है. तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू. जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू. ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू. ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है. तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. This is dedicated to each one of us. Each one of us as a story. हम सब की जिंदगी में उतार चढ़ाव
अवश्य ही आए हैं और आते भी रहेंगे। सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, क्यों इतना, I travel different parts of the country. I interact with students in various colleges, universities, civil society organizations, coaching institutes, and societies like these, the Disha Civil Service Society. तो ऐसे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कॉलेजेस में मेरे को जाने का अवसर मिला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज क्यों, सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, ये बात हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए जब हम इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं। जब आपके जहन में ये बात आ रही है कि हमें सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है या मुझे कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो वो एग्ज़ाम क्यों देना है, वो बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। क्या वो रिस्पेक्ट आपको लगता है सोसाइटी में मिलेगी, या एक कैरिस्मा है इस सर्विस को लेके, बाकी सिविल सर्विसेज को लेके, या आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। So this reason of being in civil services, why you want to join civil services should be clear in your mind. Also along with the challenges, also along with the fallouts, कि आप जैसा सोचेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। The road will not be rosy, there will be challenge in many forms in terms of हमारी जो postings है ट्रांसफरेबल है, प्रोफाइल्स हमारे, वी डोंट नो कि हम कितनी एक जगह में कितना हमारा प्रोफाइल रहेगा, कितना टाइम तक हम वहाँ पोस्टेड रहेंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेज, इन्फ्लुएंसेज, नाउ वी हैव डायनामिक पैराफर्नेलिया इन द सोसाइटी, जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, पब्लिक के ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हर तरीके की, मीडिया, जुडिशरी, सबके स्कैनर में है सिविल सर्वेंट्स। एंड मे बी बिकॉज ऑफ this advent of social media, the challenges have even grown more. Of course, it is an opportunity of connecting with the people, of conveying the positive things, the initiatives of the government to the public. That is of course there, but it has the other way negative fallout also. So ये बात को ध्यान में रखना है कि सिविल सर्विसेज आपको क्यों करना है, और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि नौकरी में जाने के बाद आप सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट आई ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स दैट ज्वाइनिंग द सर्विस और एंटरिंग इनटू सर्विस इज मच इजी, बट यू नो यू कंटिन्यूइंग इन दैट एंड अलॉन्ग विद दैट इंटेंशन, जिस मंशा से आपने सिविल सर्विसेज में ज्वाइन किया था, आप उसको अपने एम को अचीव करते हुए आगे बढ़े, वो बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव टू ट्राई। यू शुड डेफिनेटली ट्राई अगर आपकी इनर कॉलिंग है, और छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही हम सब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो आई वुड जस्ट मेंशन माय स्टोरी इन बिटवीन। मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट हैं। सो ड्यू टू दैट माय फादर हैड सेट अप हिज प्रैक्टिस इन दिल्ली। सो बाय दैट reason our entire education was in Delhi. तो I am not one of the candidates, aspirants जिसको स्कूल से ही लगता था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। No, I was not one of them. There was no discussion ever in our family. Ours is a business class family in Haryana NCR. So there was no discussion ever on civil services. So when I was in my graduation days, in my third year of graduation, मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही थी। So it is almost 20 years back, 2003 की बात है ये, that I read about civil services toppers interviews in one of the magazines. और मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि I should read more about this, and I tried to find out. And then it gave a kick to me from inside that I should try to be in civil services. But then कैसे करना है, क्या करना है, no idea, because there was never any discussion on this. And then when I discussed this with my parents, with my mummy, papa, with my family, so there was no acceptance. Immediately everybody said there is no requirement, because at that time I was also doing CS, company secretary. So at that time doing CS with graduation was allowed. So then there was so many of
एप्रीहेंशंस कि अभी प्राइवेट सेक्टर को प्रोफाइल को छोड़ के आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाओगे. एंड माय करियर वाज ऑलमोस्ट kind of very predictable that I would join a corporate sector or maybe have my own practice, something in the corporate line only. So why this shift? How many years to invest in higher studies for civil services? And then even if I study, I invest my time, there is no guarantee. Civil services is still one of the toughest examination. आज के दिन में 10 lakh plus aspirants prelims का form भरते हैं, selection few hundreds में है. And even after selection, which rank I would get, which service I would get, which cadre I would get, where will I be posted, how will I settle my family life? And more so being a female, we can't deny that there is always a little more apprehension on the mind of parents if it's a female child. At least 20 साल पहले तक तो था, आज situation बहुत better हो रही है, but still society is not equal. So then this debate discussion went on for almost around 6 to 8 months, but then my parents saw that I am trying to pursue them. Then my father said, okay, if you want to do, we will not stop you, you do, but I would advise that you should have a plan B in your life. So by plan B he meant कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 2 से 3 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी में इन्वेस्ट करूँगी after becoming a professional, and then if I don't clear, I should not feel that I am nowhere now. So I should not feel कि सब कुछ खत्म हो गया. I should have some fallback career option. So taking my papa's advice, my graduation was complete. In 2004, I completed my CS. Final examination I gave, June में I completed my CS. In the same year, I started my LLB from Delhi University. It was an entrance examination I gave, I cleared, and I got myself enrolled in LLB Delhi University, which was a regular course. I also started my part-time job as a company secretary because मुझे 2 चीज़ें लगी कि मुझे कुछ professional experience भी साथ साथ लेते रहना चाहिए, and I should also finance my higher studies, if not fully, to some extent. And then of course my priority was civil services preparation. So from 2004 to 2007, these 3 things were moving parallel in my life. My focus was entirely on civil services preparation, but I was also attending classes of law from Delhi University, and I was also doing my part-time job in which I was supposed to travel once or twice a week. So things were not easy. Time management, lack of motivation, focus, skipping social occasions, having a self-imposed quarantine life. Everything was that which I had chosen for myself. So 2006 में I gave my first attempt. Unfortunately, I did not get my interview call. So I wrote prelims, I wrote mains, but I did not get the interview call. So definitely I was very much demotivated. मुझे नहीं समझ में आया कुछ दिन कि आगे अब क्या करना है. But then I recollected my own self after a break of few days, and I gave a commitment to myself that अब जो भी attempt होगा, that should be my last attempt. Frankly, I had given a commitment. और मैं अपने आप को ये भी, मेरे जो रूम है उसमें मैं टारगेट्स अपने लगा के रखे थे, तो उसमें ये था कि 2008 में if I am not into the civil services, then I will not appear. I will move in my professional career, and then जो प्लान भी मेरा था कि प्रोफेशनल करियर के साथ में मैं जो मेरा सोसाइटी को सर्व करने का जो एम है उसके लिए मैं अपना कोई NGO सेटअप करती. That was my plan B for serving the society. So then I gave all my efforts, energy, and क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे अपनी कमियां थोड़ा पता लगा था कि I was weak in the general studies because I had been a commerce student frankly, so I was not that much, मेरे को उतना हैबिट नहीं था पहले न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी. I had lost touch with these subjects before I actually started civil services preparation. There was a long gap of many years. So उन चीज़ों पे improvise किया. I improvised on my writing. Mains is the most important aspect. After I finished my journey, I will also briefly tell you about the civil service preparation strategy. So I improvised, I gave all my efforts, and 2007 में जो attempt दिया मैंने, जिसका result 2008 में आया. So that actually
let me clear the civil services examination. I got my result in May 2008 and I got All India rank 13th. And I don't think that ranks actually matter in civil services, but yes, ranks matter in terms of the cadre allocation. And the systems are changing every year almost. So हमारे time में roster system था. In the roster system, I was allocated to Manipur Tripura cadre. And after you get one cadre, you are allotted to a particular state for your training purpose. So May 2008 में my result came, and that day is still afresh in my memories as part of my nostalgic achievements. My parents, how they felt proud, my own self, how I felt कि yes, I could do it. This was my self commitment. और मेरे ये जहन में था, मैंने ये चैलेंज लिया, अपने आप ये चैलेंज लिया, किसी ने मुझे बोला नहीं, लेकिन मैंने खुद अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की, जो सेल्फ क्वारंटीन लाइफ की मैंने बात बीच में की थी. सो रिलेटिव्स वर विजिटिंग माई प्लेस, सोशल ओकेजन्स आई वॉज मिसिंग, आई वॉज नॉट मीटिंग एनी बडी. सो देयर वर क्रिटिसिजम्स ऑल्सो, यू नो, कि स्पेशली हमारे घर में जैसे आते थे कुछ रिलेटिव्स, तो my sister was doing CA at that time, so we were generally not meeting. मतलब मैं नमस्ते करके अपने रूम में वापस आ जाती थी, even on festivals. So then they used to criticize to my parents कि ये अपनी बेटियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, तो अब ग्रेजुएशन हो गई है तो शादी कर देनी चाहिए. 20 years back की मैं बात कर रही हूँ. So but then my father used to say very specifically कि education is the right of every child, be it a male or a female. और जो लड़कियों को हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है. आगे ये जो करें ये उनकी इच्छा है. तो जब वो ये बोलते थे तो इट एडेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस दैट वी हैव टू मेक देम प्राउड. और जब रिजल्ट आया एक्चुअली में, तो देन ऑल ऑफ देम कॉन्ग्रेचुलेटेड, सेइंग टू माई पेरेंट्स कि ये तो बहुत होनहार बच्ची शुरू से ही रही है और क्लियर होगा था, हमें तो पता ही था. And she has made all of us proud. So I was actually the first one from my family to be in civil services. Entire family, maternal, paternal, दूर दूर तक कोई civil services में, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में ही हार्डली कोई रहा होगा. So मेरे स्कूल से DAV पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि एनक्लेव, my parents are very nearby, like so पीतमपुरा में my parents stay. So DAV पुष्पांजलि एनक्लेव में से I was the first one to get admission into Shriram College of Commerce, Delhi University. I was the first one to get into civil services, become an IAS officer. So there are, you know, why I'm sharing my stories, that life में आपको खुद decide करना है कि आपको क्या चाहिए. What is it that you want to achieve? Of course, people will, you know, your friends, your teachers, your parents, they will guide you, support you in what you want to do. But ये clarity आपको अपने जहन में खुद लेके आनी है कि what is it that you want to achieve, and उसके साथ में ये question clear होना चाहिए कि why you want to achieve that. वो आपको चीज़ क्यों करनी है, सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, इंजीनियरिंग क्यों करनी है. Day before yesterday I was with students at IIT Kanpur. They had invited me for one of their events. So even they were not actually generally preparing for civil services, but they had invited me for some other cultural fest which was going on there. But when I was interacting with the students of your age only, so those apprehensions I could feel कि clarity नहीं है, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं बट मन में ये लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए, या ये फील्ड ही चेंज कर लें. इंजीनियरिंग इसलिए आया कि पेरेंट्स ने बोला, या हमें लगा कि IIT में एडमिशन होगा तो इट्स लाइक अ बिग थिंग, बट नाउ दे वांट टू मूव ऑन. सो आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स, गिव सम टाइम टू योर ओन सेल्फ. अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन शायद हम इस एज में नहीं कर पाएंगे. मैं भी शायद नहीं कर पाई थी. ग्रेजुएशन तक मुझे जो मेरे फैमिली में जो सिस्टम था, दैट वाज एन एक्सेप्टेड नॉर्म फॉर मी. आई नेवर थॉट कि मुझे इससे अलग भी जाके कुछ करना चाहिए. मुझे नहीं, अवेयरनेस नहीं हुई. बट नाउ यू पीपल आर ब्लेस्ड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन एक्सेस. यू आर हैविंग दैट इंटरनेट, फ़ोन सबके पास है. हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था मेरे पास में. आई वॉज हैविंग अ शेयर्ड मोबाइल विद माई सिस्टर, जिसका लेट अगर कोई बाहर क्लास के लिए जाना है तो उसको मिलता था.
वी डिड नॉट हैव इंटरनेट एट आवर होम. जब मैं फिर तैयारी कर रही थी उसके बाद में हमने कंप्यूटर लिया और मैंने सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट भी है वो मुझे पहले एक मेरे फ्रेंड ने बताया ओवर फोन, बट आई कुड नॉट एक्चुअली रिलाई ऑन दैट कि मेरा इतना रैंक आया है. बट देन व्हेन आई सॉ इट ऑन माय डेस्कटॉप देन ओनली आई कुड एक्सेप्ट कि हाँ दिस इज देयर. सो यू हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो यूज इट टू योर बेनिफिट. व्हाई आई एम सेइंग इज कि आपके पास में 3, 4, 5 आपको लगेगा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है. सो देन ट्राई एंड स्टडी कि उस फील्ड में जाके आप क्या कर पाओगे, इस फील्ड में जाके आप क्या कर पाओगे. और यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, सो व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टार्टअप यू वांट टू हैव. So all these things are very important. And then when I joined my academy way back in 2008 September, then I met my batchmates from different states, having different backgrounds, meritorious, speaking different languages, cultures. It was a very good experience. And then I joined my cadre Tripura in 2009 June I joined. और वहाँ पे जाके मैंने देखा, मैं I had very quite lot of apprehensions because मैं कभी भी नॉर्दर्न पार्ट से बाहर कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया था. इनफैक्ट लबासना मसूरी was my first hostel, so as to say. I never stayed out of my parents' home. So मैं वहाँ पे गई और with all those apprehensions कि क्या होगा, मैं कैसे सेटल करूँगी. But then slowly and steadily I used to I tried to make myself acquaint with that place. I learned Bengali, adapt to the food habits. मेरा first posting जो था as SDM Ambassa, that was a predominantly tribal subdivision. So in Tripura we have Gram Panchayat and we have autonomous district council areas, which at the field level are called village committees. So subdivision Ambassa में maximum village committees का area था, जहाँ पे 2010 की मैं बात कर रही हूँ. तो वहाँ पे आपको अगर वो ट्राइबल हैमलेट जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक पहुँचना था तो यू वुड हैव टू वॉक 5-7-8 किलोमीटर्स. गाड़ी जाने का सुविधा नहीं था. अब डेफिनेटली नाउ द कनेक्टिविटी हैज़ इम्प्रूव्ड. सो माई प्रायोरिटी एज एन SDM वॉज दैट आई शुड मीट एटलीस्ट दोज पीपल एंड सी हाउ दे आर लिविंग एंड सी वेदर दे आर गेटिंग द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, आंगनवाड़ी सेंटर, सब सेंटर, PHCs, etc. or not. And then when I started touring, I saw that there is lot of scope for improvisation because the government officials who are posted there, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर में जो MPW हैं, जो डॉक्टर हैं, वो वहाँ पे जा ही नहीं रहे हैं रोज़. वहाँ का जो स्कूल है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ कम्यूट करने की प्रॉब्लम है. दैट इज़ वेरी जेन्युइन. If I am as an SDM, I am not able to commute every day because of the connectivity issue. How do we expect to go there every day on foot for 5 kilometers, 7 kilometers? So then we took the help of local BSF outposts. वहाँ पे त्रिपुरा में BSF deployment काफ़ी high है. Tripura has the longest border with Bangladesh in the entire country. So we took the help of local BSF outpost and वहाँ पे उन्होंने हमें मदद की. जो हमारे ऑफिशियल्स पोस्टेड थे, दे गेव देम द स्टे अरेंजमेंट फैसिलिटीज इन द BSF आउटपोस्ट एरियाज. सो आवर डॉक्टर्स, आवर टीचर्स, आवर आंगनवाड़ी वर्कर्स वुड स्टे फ्रॉम Monday to Friday there and then come back on weekend and travel again on next week, Monday. So that way this arrangement actually worked. And we could see that these small initiatives of collaboration, of partnership, of thinking beyond the obvious actually help. So मेरा त्रिपुरा में मैंने initial stint में मेरा 8 years का मेरा profile मैंने किया है. Generally it was in the field. Then I moved to Haryana on inter-cadre deputation. Here also I was posted in field. I worked in Faridabad, Jhajjar, Gurugram. And then I went back to Tripura in 2020 after my deputation was over. And last year, I am posted in Delhi as the Resident Commissioner of Tripura House. So now it is almost 14-15 years of my service as an IS officer. So I can say one thing, that this service definitely gives you many opportunities, diverse opportunities to serve to the people. And it is up to you how you utilize it.
ये ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट चेंज कर पाओगे. लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको लगता है कि अभी तक सब खराब है और आप जाके यू विल हैव अ मैजिक वॉन्ड जिससे पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. डेफिनेटली यू हैव टू गिव टाइम टू योर टीम. टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो टीम वहाँ पे है, आप तो क्या है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जनरली टेन्योर कहीं पे भी नहीं होता है. यू विल बी ट्रांसफर्ड एंड यू विल बी पोस्टेड आउट. बट जो आपके साथ में जो नीचे के ऑफिशियल्स हैं, एलडीसीज हैं, यूडीसीज हैं, जो स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं या जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, they are generally there for a comparatively longer time. So it is also very important to have those team building exercises being done there, capacity building, उनका training, उनका orientation, ताकि जब आप वहाँ से ट्रांसफर होके भी जा रहे हो, so your initiatives should be sustainable. That is also very important. ऐसा नहीं कि आपने कुछ शुरुआत की and then it is somewhere in the middle and when you are moving out, things are again back to square one, nobody is bothered what was there. So एक ये भी important है. और एक बहुत important चीज़ ये है कि we have to work with people, we have to work with citizens, we have to work with public at large. तो हम जो public गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बात करते हैं, सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरफेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And for that, now of course digital initiatives are becoming very handy tool. हमारी जो सर्विस डिलीवरी है, जो हमारा मैंडेट है as per Right to Service Act, in that we have a time frame of कि these services should be delivered in how much time. If somebody is applying for a birth certificate, what is the time period, marriage registration, or your land records. So these digital initiatives are definitely helping. But also an officer needs to tour a lot. I always feel that unless and until you have your field visits very regularly, you won't be a good administrator. Because आपके नीचे वाले आपको पूरी चीज़ ढंग से नहीं बताएंगे. And then when you are meeting people as an officer, आपका देखिए दिन शुरुआत होता है. If I talk about a normal day of an IAS officer जिसमें कोई मेजर उलझन नहीं है, तो सुबह आप उठेंगे, you devote some time to yourself, read about your district newspaper and all, then you get ready for the office. Office में you will have some public meeting time that is mandatory, at least 2 to 3 hours you dedicate for the public meeting time. Then you have some meetings, official meetings. So मेरा क्या रहता था कि मेरा सुबह का टाइम public meeting time मैं रखती थी, and I generally used to finish it off by say 2 o'clock before lunch. और फिर लंच के बाद में मैं रखती थी अपना खुद का मीटिंग जो मुझे ऑफिसर्स के साथ रिव्यू करना है. आई नेवर हैड इट इन द मॉर्निंग बिकॉज आई फेल्ट कि पब्लिक जो है सुबह सुबह ज़्यादा आती है मिलने ऑफिसर से, तो ऑफिसर शुड बी अवेलेबल. एंड इफ़ आई कॉल एनी मीटिंग तो जिले के बाकी ऑफिसर्स भी सब एंगेज हो जाएंगे. तो आई जनरली यूज टू कॉल शेड्यूल माई मीटिंग्स इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, नॉट इन द मॉर्निंग टाइम. एंड देन इवनिंग में अपना मीटिंग किया. देन लेटर ऑन इन माय कैंप ऑफिस डिस्पोज ऑफ द फाइल वर्क. किसी से और कोई कॉल, कोई कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन मीटिंग करना है तो वो है. एंड अगर आपका किसी दिन में फील्ड विजिट शेड्यूल है तो देन यू शुड लीव वेरी अर्ली फॉर योर फील्ड विजिट, सो दैट वो फील्ड विजिट 2-3-4 घंटे की आप करके यू आर डूइंग इंस्पेक्शन. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज इंस्पेक्शन एज अ सरप्राइज. इफ़ यू अनाउंस टू मच इन एडवांस कि आप आ रहे हो, आई जनरली नेवर, या तो किसी डिपार्टमेंट का रिव्यू है तो डेफिनेटली मैं बता के जाती थी, बट आई ऑलवेज ट्राई टू हैव सरप्राइज इंस्पेक्शन फॉर्मेट ऑल्सो, दैट व्हेन आई एम गोइंग आई विल ऑल्सो विजिट द स्कूल, आई विल ऑल्सो विजिट द आंगनवाड़ी सेंटर, द प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर. वहाँ पे और कोई डिपार्टमेंट का ऑफिस है तो उसकी भी देखना कि स्टाफ है नहीं है, कितने स्टाफ हैं, क्या कोई फील्ड में है, चेकिंग देयर अटेंडेंस रजिस्टर. So all these things, you know, they are very handy. And not only me, I think most of the officers are doing like this. So there is lot many things which you can do as a civil servant. The only thing is कि there would be many challenging situations जिसमें आपको on the spot decision लेना है. कोई law and order issue हो गया, कोई communal disharmony हो गया. I remember when I was DM Gomti, there was some issue of a
so-called alleged suicide by a TSR Jawan, and that kind of a thing had never happened in the district. So there was a lot of unrest. So I had to talk with the so-called the society leaders. So जो हमारा इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी एक एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक इंटरफेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड, सो दैट जो आप फॉर्मली चीज़ें नहीं बोल पा रहे हो वो आप इनफॉर्मली थ्रू योर डिफरेंट सोर्सेज वो चीज़ों को मैनेज करना होता है. यू टू डाइल्यूट द सिचुएशंस. So this is how you will keep moving and keep learning, and I think civil services offer lot many opportunities, but इसके साथ साथ फॉलोआउट्स भी काफ़ी हैं. आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहता है जनरली. मेरी डॉटर अब 10 years की हो जाएगी. उसका हर साल में स्कूल चेंज हुआ है. शी हैड नेवर रिपीटेड एनी स्कूल इवन टिल नाउ फ्रॉम हर प्री नर्सरी क्लास. So these are things which come up to our way, but it is how you have to manage and बैलेंस बोथ द साइड्स. एंड नाउ ब्रीफली 5 मिनट में मैं तैयारी के बारे में जस्ट मैं स्टूडेंट्स क्योंकि दे माइट बी विलिंग टू नो. सो वी हैव इन सिविल सर्विसेज यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. एज वी ऑल नो कि प्रीलिम्स इज़ एंटायरली ऑब्जेक्टिव एंड नाउ इट इज़ सी सेट. मेरे टाइम में सी सेट नहीं था एंड वी हैड 1 ऑप्शनल एंड 1 GS सब्जेक्ट. सो नाउ इट इज़ 1 option, there is no optional, so you have 1 GS and 1 is the mental aptitude paper which is there, and it also has a negative marking. So GS में क्या है, GS में आपका extensive study required है. You don't need to go into details. You have to have that extensive study and अगर हम बात करते हैं, अगर मैं 12 महीने की, आई ऑलवेज टेल टू द स्टूडेंट्स कि सिविल सर्विसेज में पीपल आस्क मी कि कितना टाइम चाहिए तैयारी के लिए. सो आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट 12 महीने प्रीलिम से पहले हमें बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए और हम कोशिश करके तैयारी शुरू कर दें. सो अगर किसी को नेक्स्ट ईयर 24 में अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, सो नाउ इट इज़ द टाइम दैट यू ऑल शुड स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली. और इनिशियली 5 से 6 महीने से अप्रैल मई से लेके आप सितंबर अक्टूबर तक अपना कंबाइंड स्टडी करो, जिसमें आप कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कर रहे हो. प्रीलिम्स एंड मेंस का कंबाइंड स्टडी. यू रीड अबाउट GS, यू रीड ऑल्सो अबाउट योर ऑप्शनल, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स को पढ़ने का तरीका, वो सब आपका एक, एंड ट्राई टू कवर अप द सिलेबस. एंड देन व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, जो अगले 3 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं, उसको हम मेंस के ऊपर फोकस करके पढ़ाई करें. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग, वी ऑल नो. आपका जो फाइनल रैंक आएगा वो आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही आएगा. इंटरव्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट जो वेटेज मेंस कैरी कर रहा है, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो जो हमको ये जो टाइम है 3 से 4 महीने, उस पर हमें आंसर राइटिंग, हमें अपने नोट्स बनाने हैं अगर, सो दैट व्हेन आफ्टर प्रीलिम्स जो आपको टाइम मिलता है वो टाइम कम है. एंड देन यू विल हैव ऑल दोज पेपर्स एक साथ में, सुबह शाम वो पेपर देने बहुत टफ हो जाते हैं एक्चुअली. एंड यू विल नॉट हैव टाइम टू मेक फ्रेश नोट्स. सो आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि अगर पॉसिबल है तो ये काम पहले करके रख लीजिए. एंड रिपीटेड रिविजन्स, आंसर राइटिंग स्पेशली फॉर योर essay पेपर एंड फॉर योर ऑल पेपर्स इन द मेंस, दैट इज़ वेरी नेसेसरी. और फिर जब प्रीलिम्स आने वाला है उससे 2 से 3 महीने शिफ्ट टू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, शिफ्ट एंटायरली टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन. उसमें आप एक्सटेंसिवली अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, GS के पेपर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो, वट एवर, आई मीन ग्रुप स्टडी, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन, वट एवर इज देयर अवेलेबल, यू डू दैट. ओके. एंड देन जब प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद में टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू डेज. आपको पता लग जाएगा आपका स्कोर कितना है. यू गेट टू नो वेरी इजीली नाउ. एंड डू नॉट बी डिजेक्टेड इवन इफ यू फील यू आर नॉट एबल टू क्लियर. वेट फॉर द रिजल्ट, बिकॉज वी नेवर नो क्या होगा. एंड विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन्स. डू नॉट वेस्ट टाइम. मैंने देखा है मेरे साथ ही कलीग्स जो तैयारी करते थे, वो जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता, दे जस्ट वेस्टेड देयर टाइम कि देखते हैं अगर मेंस होगा तब उसकी तैयारी करेंगे. बट सिविल सर्विसेज की तैयारी में
एक एक दिन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल डे, इवन अ सिंगल डे इज इम्पॉर्टेंट। और जब हमारा सिलेक्शन होता है ना, तब हम देखते हैं एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो रही है, और वो जो रैंक एक एक नंबर से ऊपर नीचे होती है, आपके काडर ही चेंज हो जाता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पहली थी अपनी फैमिली में, एंड आई वॉज नॉट यूज टू टेकिंग कोचिंग्स ऑल्सो, सो आई हैड अ वेरी लिमिटेड कोचिंग, so I was generally preparing from my home। तो मुझे इतना सब पता ही नहीं था। आई एक्चुअली लर्न ऑन माई ओन, स्लोली उस तरीके से हुआ। बट आज तो आप सबके बारे में, सबके पास में इतने सारे एवेन्यूज हैं फॉर टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो ट्राई एंड यूज इट टू योर बेनिफिट। प्रीलिम्स जब दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा दिन का ब्रेक लेके हम मेंस की तैयारी दोबारा शुरू कर दें। एंड देन व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस, नेवर लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का भी है और आपने सपोज उसमें 2 लाइन, उसमें 3 लाइन भी लिख दी, और अगर आपको 1 नंबर भी मिल रहा है, तो दैट इज टू योर एडवांटेज, बिकॉज आपकी रैंकिंग में वो मैटर करेगा। सो यूज इट, एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू राइट योर मेंस, आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू डेज अगेन, एंड देन इंटरव्यू की तैयारी जो करनी है वो करनी होगी। इंटरव्यू इज डेफिनेटली अ ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट। इट टेस्ट योर ओरिएंटेशन। सबसे पहले तो वो यही जानना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, विथ वॉट इंटेंशन। कोई IIT से जा रहा है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, कोई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है, कोई डॉक्टर है, तो क्यों आप क्यों जाना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज में, या कोई फ्रेश ग्रेजुएट है। So with what intention they want to come into civil services, and then they will ask various questions relating to your education, your professional qualifications, your native place, कहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई, about जहाँ से आप हैं वहाँ का कुछ खूबी हो, या उसको लेके कोई controversy हो। So 1 or 2 things are very important for interview is that we should never bluff in any interview। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है, so you should always admit that, sir or ma'am, I am sorry, I am not able to recall this at this moment, I am not aware of this, but I will definitely update my knowledge when I move ahead, when I go out of this interview, I'll definitely update। आप ये मत सोचिए कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है इंटरव्यू में। नेवर, यू कैन नेवर डू दैट, बिकॉज there is no limit to what can be asked। They just want to assess your personality in terms of how you perform under stress, how you perform under a challenging situation। So uske liye it is important that you have to be true to your own self। Do not try to bluff। अगर आपको genuinely किसी चीज़ का जवाब नहीं आता है, तो उसको मना कर दीजिए humbly, politely। And if there is any discussion or a debate, उसमें भी मेरी सजेशन यही है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा वो एक रीजनड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ अ फेक आर्ग्यूमेंट कि आपने कहीं पढ़ा था, आपको ऐसा लगता है। इफ यू आर नॉट वेरी वेल कन्विंस्ड, देन डू नॉट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। सिंपली एडमिट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड देयर इज नो हार्म इन डूइंग। दे ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट द एस्पिरेंट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज हाउ वी मूव in our preparation journey, and this entire journey at least 1 साल पहले जो सिविल सर्विसेज की तैयारी हम शुरू करते हैं, and 1 year is consumed when you are preparing and appearing prelims से लेके इंटरव्यू तक। तो 2 साल तो आपके जनरली ऑन एन एवरेज लगते ही लगते हैं। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन भी होगा। यू विल हैव सेल्फ डाउट, आपको लगेगा आपके फ्रेंड्स तो चिल कर रहे हैं, किसी की नौकरी लग जाएगी, और आप घर में बैठे हो, आप तैयारी कर रहे हो, और तैयारी भी कर रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा। सो फॉर हैंडलिंग ऑल दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमारी क्या कमियां हैं और हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। व्हेन यू आर इन लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दैट। आपको फ्रेंड्स से बात करके अच्छा लगता है, आपको मूवी देख के अच्छा लगता है, और यू हैव योर रन, यू हैव योर म्यूजिक, वट एवर। सो डू दैट।
मेंटल डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है. एंजाइटी एप्रीहेंशंस को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है. दिस इज समथिंग विच वी जस्ट कैनॉट अफोर्ड. योर लाइफ, एवरीबडीज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. और क्या होगा अगर सिविल सर्विसेज नहीं होता है तो? नथिंग. इट इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ. वी विल हैव सम अदर गुड थिंग. लाइफ विल हैव सम अदर गुड अपॉर्चुनिटी. अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं होती तो मैं प्राइवेट सेक्टर में होती इस वक्त, या हो सकता है अपना कुछ स्टार्टअप किया होता, अपना कोई एनजीओ किया होता है. एंड हु नोज, आई मे हैव फेयर्ड बेटर. ये तो मैं आज यहाँ पे हूँ, हो सकता है मैं उस दूसरे प्रोफाइल में आई वुड हैव बीन बेटर प्लेस्ड. So that you can't predict actually how life takes you along. The only thing is be true to your own self. हमारे जो एफर्ट हैं वो जेन्युइन एफर्ट्स होने चाहिए एंड वी आर आंसरेबल टू आवर ओन सेल्फ. हमारा जो जर्नी है, हमारा जो स्ट्रगल है, उसके लिए जवाबदेही हमारी खुद की है. इट इज़ नॉट टू एनीबडी एल्स. एंड व्हेन यू आर अंडर दिस चैलेंज, व्हेन यू आर अंडर दिस डिप्रेशन, व्हेन यू आर अंडर दिस एंजाइटी, टॉक टू द पीपल अराउंड यू. डू नॉट लेट इट, अपने अंदर उसको आने नहीं देना है. सो आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन half an hour that I am speaking. So my best wishes to all of you. Just one or two things towards the end I would like to just mention. That again I would reiterate that civil services is not the end of the world. And अगर इसमें नहीं होता है तो definitely कुछ आप अच्छा ज़रूर करेंगे. So have that conviction in your mind. As an administrator, I always request the young students कि whatever career, profession और vocation you choose, हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना है. That is something which we should try and imbibe in our own self, that we all have this social responsibility and we all should contribute towards nation building. That is very important. We all should have that. एंड कुछ पंक्तियाँ मैं आप सबके लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. हारा वही जो लड़ा नहीं. हारा वही जो लड़ा नहीं. तो अगर आप हार ही मान लेंगे, इफ यू एक्सेप्ट योर फेलियर्स, यू विल नेवर अचीव योर सक्सेस. सो इवन इफ यू फेस फेलियर्स, you have to overcome them and move forward in life, and keep telling to yourself, I can and I will. Keep telling to yourself, I can and I will. And as we all know, even impossible says, I am possible. So have faith in yourself, have that courage, have that positive self-belief, have that self-awareness, have that self-esteem, positive self-belief, and achieve what you want to do in your life. Thank you so much for inviting me over here. And last में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन दी एंड आई वुड लाइक टू रीइटरेट, जो मैंने बीच में भी कही, दैट स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस चीज़ में आपको खुशी नहीं है वो काम नहीं करना है, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू सस्टेन योर एफर्ट्स, राइट. सो स्टे हेल्दी, गिव इम्पोर्टेंस टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. जय हिंद.